Hello, students. Let's continue the story The Red Trap. In previous lecture, we read that the red trap peddler had reached Ramsjo iron work. He had been wandering in the forest for the whole day, but he could not find any way to get out of it. And he was trapped in this forest because of his own choice. He didn't want to be caught by the people because he had stolen the money of the old farmer. He thought that he would be caught if he kept walking on the roads. So he entered in the woods where he could not find a way to get out of it. But at the end, when he was waiting for his death, he heard the thumping sound of hammer strokes of Ramsjo Iron Works, and he raced to that iron mill, where master blacksmith was working with his apprentice, with his helpers. And now, when he had entered the mill, it was not noticed by the master blacksmith. We have to read from this point. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds. Poor vagabonds means the people who keep wandering here and there, who have no shelter, who have no homes. So he kept wandering. So those people who didn't have any shelter, without any better shelter for the night, they came there to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. Sooty means black panes, and these panes means glasses of window. So these glasses of windows were black due to smoke. तो उनमें से जो आग की रोशनी छन करके बाहर जाती थी, उसको देख करके आवारा लोग उस मिल में आ जाते थे, because they didn't have any shelter and they wanted to protect themselves from the cold waves, सर्दी से बचाने के लिए, and to come in to warm themselves in front of the fire. So they came there. ऐसे ऐसे लोग आ जाते थे अपने आप को सर्दी में आग के सामने सेकने के लिए. The blacksmiths glanced only casually. Glance का मतलब होता है किसी की तरफ एक झलक देखना, बस एक बार देखना. Not look intently, ध्यान से ना देखना. Casually means without any reason, and indifferently means बिना किसी इंटरेस्ट के. At the intruder means the person who had entered the force without their permission. घुसपैठिया बोलते हैं हिंदी में. He looked the way people of his type usually did. वो वैसा ही दिख रहा था जैसे उसकी तरह के लोग दिखते हैं. With a long beard, dirty, ragged means फटे हुए कपड़े पहने हुए, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. So there was a bunch of rat traps hanging on his chest. तो वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे उसके टाइप के लोग दिखते थे. आवारा, बेघर, गरीब, फटेहाल, ऐसा ही दिख रहा था वो. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent. Haughty means arrogant. Arrogant consent means permission, without honoring him with a single word. मास्टर ब्लैकस्मिथ ने परमिशन दे दी, बट he didn't speak, बोला नहीं. The tramp did not say anything either. Tramp ने भी कुछ नहीं कहा. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. वो वहाँ पर बातें करने थोड़ी ना आया था, वो तो अपने आप को हीट देने आया था. सर्दी लगी हुई थी उसको, सोने आया था. उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मास्टर ब्लैकस्मिथ ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी. एक शब्द तो बोल देता कि भाई रुक जाओ, ठहर जाओ. एंड यू नो हाउ ही
डिड दिस, उसने अपने सर को थोड़ा सा हिला करके इशारा कर दिया हुआ दैट यू कैन स्टे हियर। इन दोज डेज द रामजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट मीन्स इम्पोर्टेंट, अ पर्सन हु इज़ वेरी स्पेशल आयरन मास्टर। तो उन दिनों रामजो का जो मालिक था वो बड़ा खास आदमी था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन मीन्स सबसे बड़ा लक्ष्य वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि भाई अच्छी क्वालिटी का लोहा वो मार्केट में उतारे। इट वॉज हिज एम्बिशन। ही वॉज्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। तो वो हर वक्त चेक करने के लिए आता रहता था कि एक लोहा बनाने का जो काम है वो जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से हो। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्स ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन मीन्स का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेशन। तो वो कभी भी आ जाता था चेक करने के लिए कि वर्कर्स ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, वर्कर्स अच्छी क्वालिटी का लोहा बना रहे हैं या नहीं। वो कभी भी आ जाता था सो दैट वर्कर्स को ये डर रहे कि भाई मालिक कभी भी आकर के चेक कर सकते हैं। तो वो उस दिन रात को इंस्पेक्शन के लिए आ गया। सो आयरन मास्टर की क्वालिटी थी कि वो अपनी मिल से अच्छी क्वालिटी का लोहा बना करके निकालना चाहता था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रेगामुफिन। रेगामुफिन मीन्स a bundle of rags, फटे हुए क्लॉथ्स, इसका एक बंडल ढेर वो उसको दिखाई दिया। एंड वी नो दैट वॉज नॉट अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स, इट वॉज द रेड ट्रैप पेडलर हु हैड ईज्ड हिज वे टू द फर्नेस एंड स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। मतलब वो जो पेडलर था वो अंगीठी के इतने पास लेट गया था जाकर के उसके कपड़ों में से भाप उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ्स हु हैड हार्डली ट्राइड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। आयरन मास्टर ने ब्लैकस्मिथ की तरह नहीं किया। ब्लैकस्मिथ ने तो देखा भी नहीं था उसकी तरफ, तो उसकी तरह तो नहीं किया आयरन मास्टर ने। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, बल्कि वो चल करके गया उसके पास। looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face। और फिर उसने उसके उस तिरछे हैट को उठाया जो उसके फेस पर ढका हुआ था ताकि वो उसको अच्छे से देख पाए। यू नो दैट आयरन मास्टर वॉज द ओनर ऑफ द मिल एंड इफ़ ही सॉ समथिंग स्ट्रेंज इट वॉज नेसेसरी फॉर हिम टू चेक व्हाट वॉज दैट। आफ्टर ऑल ही हैड रीच देयर फॉर इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में तो सब कुछ आता है, एवरीथिंग इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो वो गया वहाँ पर, उसने चेक किया। बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ओलफ, ये तुम हो, ही सेड। हाउ यू डू लुक, कैसे दिखते हो तुम। नील्स ओलफ, तुम कैसे हो गए हो, कैसी हालत है तुम्हारी, ये कैसे लग रहे हो तुम अभी। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजो and did not even know what his name was। पेडलर ने कभी नहीं देखा था आयरन मास्टर को और ना ही वो उसके नाम को जानता था। बट इट seemed to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance means चिर परिचित, the person whom we know, जिसको हम जानते हैं। अगर आयरन मास्टर को लगता है कि वो उसका जानकार है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, शायद वो उसको दया करके कुछ क्रोनर दे दे, कुछ मनी दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। अनडिसीव मीन्स अपनी पहचान बताना। ही थॉट दैट आयरन मास्टर माइट बी थिंकिंग दैट ही वॉज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, उसको गलती हो गई है पहचानने में और वो दया करके कुछ पैसे दे देगा उसको। दैट्स वाई ही डिडंट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। बल्कि उसने ये कहा कि भगवान जानता है कि मेरा कितना सर्वनाश हो गया है। डाउन हिल का मतलब होता है पतन हो गया है, कितना मेरा लॉस हो गया है।
ये सेंटेंस बिल्कुल फिट बैठ गया यहाँ पर कि भाई उसको लग रहा है कि ये कैसी हालत है उसकी, तो डेफिनेटली उसको ऐसे ही सेंटेंस बोलना चाहिए जो फिट हो जाए। उसने बोल दिया कि भाई भगवान जानता है मेरा कितना नुकसान हुआ है। दिस वॉज सेड बाय पेडलर, पेडलर ने बोली है ये बात। और पेडलर ने क्यों बोली है ये बात? बिकॉज ही थॉट दैट आयरन मास्टर उसको अपना कोई चिर परिचित मान गया है, उसको गलती हो गई पहचानने में। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें रेजिमेंट से, तुम्हें आर्मी से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। सैड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने बोला। इट मीन्स आयरन मास्टर ने उसको जो भी आदमी माना है वो आदमी आर्मी में था और उसने आर्मी से रिज़ाइन कर दिया था। दैट वॉज द मिस्टेक। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड। वो एक गलती थी, अगर मैं आर्मी में होता ना तो मैं ऐसा नहीं होने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। आई विल हेल्प यू टू गो along up to the manor house. Manor house means the person who is very rich in a village is called a manor. जमींदार जागीरदार को बोलते हैं। भाई उस मेनर के घर पे जाना and be received by the owner like an old regimental comrade. Comrade means fellow. Regimental comrade means army का fellow. That however did not please the tramp. Please means make him happy. Tramp means आवारा। सो पेडलर को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा कि वो आयरन मिल के ओनर के साथ उसके घर पे जाए और वो वहाँ पर उसका स्वागत करे। और कैसे स्वागत करे? अपने एक पुराने सहयोगी की तरह। उसको अच्छी नहीं लगी ये बात। ही डिडंट वांट टू गो विद द आयरन मास्टर। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। वो बिल्कुल अलार्म, चौंक गया था। चौंक करके बोला उसने, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ही थॉट ऑफ द 30 kroner टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली मीन्स विद हिज ओन अकॉर्ड, अपनी खुद की इच्छा से, इन टू द लायंस डेन। लायंस डेन शेर की गुफा में। भाई वो उसने अपने 30 kroner के बारे में सोचा जो वो चुरा करके लाया था कि भाई मैनर के हाउस में जाना, उस आयरन मास्टर के घर पे जाना, इसका मतलब होगा अपने आप को खुद अपनी मर्जी से शेर की गुफा में डालना। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकंस्पिकसली एज पॉसिबल। स्नीक अवे मीन्स चुपके से निकल जाना, चोरी चुपके से, जितना चोरी चुपके से हो सकता है। इनकंस्पिकसली का मतलब स्टीलिंगली, स्टील्थली, चोरी से, चुपके से, बिना दिखे। भाई वो तो यहाँ पर ये करने आया था ना कि वो सोने आया था यहाँ पर और चोरी चुपके से निकल जाना चाहता था। दिस वॉज हिज डिज़ायर एंड नाउ ही वॉज बीइंग टेकन टू द आयरन मास्टर्स होम। इट कुड बी डेंजरस फॉर हिम, दैट्स वाई ही वॉज अलार्म्ड। वाई वॉज ही अलार्म्ड? अगर वो वहाँ पे जाता तो डेफिनेटली ही वुड बी कॉट कि ये वही बंदा है जिसने वहाँ एक पुअर फार्मर के घर से पैसे चुराए हैं। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, द आयरन मास्टर thought that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर ने सोचा कि उसके कपड़े फटे हुए हैं इसलिए उसको शायद शर्मिंदगी फील हो रही है, इसलिए ये नहीं जा रहा है। Please don't think that I have such a fine home that you can't show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो आयरन मास्टर को जब ये लगा कि वो कपड़ों की वजह से शर्मिंदगी फील कर रहा है तो उसने बताया कि भाई मेरे घर में कोई नहीं है, तुम्हें पता है एलिजाबेथ तो पहले ही मर चुकी है। एलिजाबेथ इज हिज वाइफ और मेरे लड़के पढ़ने गए हुए हैं, अब मेरे और मेरे बड़ी बेटी के सिवाय कोई नहीं है घर पर। एंड इफ़ यू कम टू माई होम तो हम क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करेंगे एंड इट वुड बी अ हैप्पी टाइम टुगेदर। तो चलो मेरे साथ। सो टिल दिस पॉइंट वी हैव रेड एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट lecture. Till then, my dear students, take care. Bye.